संघर्ष करें। राहुल जी आप हम सबको मार्गदर्शित करें। આપણે રાહુલજીને હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। જય હિન્દ। માન્ય ધારાસભ્ય શ્રી ચંદ્રિકાબેન બારિયાને હું વિનંતી કરીશ કે સભાનું સ્વાગત કરે, રાહુલજીનું સ્વાગત કરે, આદિવાસી સમાજનું સ્વાગત કરે, તમામ જિલ્લામાંથી ગુજરાતમાંથી પધારેલ આદિવાસી સમાજના આગેવાનો શ્રીઓનું સ્વાગત કરે। આજે બેન 2 મિનિટ પોલીસના મિત્રોને વિનંતી કરું કે અમારા આંદોલનના કાર્યકર્તાઓને સભા મંડપમાં આવવા માટે દરવાજા ખુલ્લા મૂકે। પોલીસ વિભાગના મિત્રોને ખાસ વિનંતી છે, 60% લોકો બહાર ઊભા છે, એમને ઝડપથી સભા મંડપમાં આવવા માટે દરવાજા ખુલ્લા મૂકે। આભાર। જોહાર, જય આદિવાસી। આજે આપણા દાહોદ જિલ્લાની ધરા પર આપણા અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસ સમિતિના માનનીય પ્રમુખ શ્રી આદિવાસી દલિતોના સર્વ સમાજના લોકલાડીલા યુવાનોના હૃદય સમ્રાટ શ્રી આદરણીય રાહુલ ગાંધીજીનું જોહાર સાથે આદિવાસી સત્યાગ્રહ સંમેલનમાં દાહોદની પવિત્ર ધરા પર હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। ત્યારે આ સભામાં ઉપસ્થિત ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સંગઠનના પ્રભારી અને રાજસ્થાનના પૂર્વ આરોગ્ય મંત્રી અને હાલના ધારાસભ્ય અને ગુજરાતના પ્રભારી એવા ડોક્ટર રઘુ શર્માજી, ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના માનનીય પ્રમુખ શ્રી જગદીશ ઠાકોર સાહેબ, ગુજરાત વિધાનસભાના નેતા માનનીય સુખરામ રાઠવા સાહેબ, સાથે મંચસ્વ તમામ વરિષ્ઠ આગેવાનો, મારા સાથી ધારાસભ્યો, દૂર દૂરથી આવેલા સંમેલનમાં આદિવાસી ભાઈઓ બહેનો, કાર્યકરો, યુવાન સાથીઓ, મીડિયાના મિત્રો ને શુભેચ્છકો, ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ વતી જય જોહાર, જય આદિવાસી, જય સંવિધાન અને જય જય ગરવી ગુજરાત સાથે પુનઃ આપ સૌનું તહે દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે ગુજરાતની પાવન ધરા પર આદિવાસી સત્યાગ્રહ સંમેલનમાં આપણા અધિકાર માટે, સંવિધાનને બચાવવા માટે, જંગલ જમીનને બચાવવા માટે આપણે રાહુલજીના નેતૃત્વમાં ખભે ખભા મિલાવીને બહુ મોટું સત્યાગ્રહ આંદોલન કરી સમગ્ર દેશમાં પરિવર્તન લાવવાનું આહ્વાન આજે આપણા નેતાની સાક્ષીમાં વચન આપીએ છીએ। આપની લડાઈ એક તીર એક કમાન, આદિવાસી સબ એક સમાન, તેજ ગતિએ આપણા આદિવાસી અહીં ભેગા થયા છે। ત્યારે સાહેબ, અમારો આદિવાસી દાહોદ જિલ્લો ઉમરગામથી અંબાજી સુધી અહીંયા 14 જિલ્લાનું જે આદિવાસી સંમેલન નથી રાખ્યું, પણ અમારો જે આદિવાસી પટ્ટો છે, ત્યારે અમને ગૌરવ થાય છે કે આજે એક મહિલા ધારાસભ્યને, એક આદિવાસી દીકરી તરીકે આજે અહીંયા મને મંચ મારા નેતૃત્વમાં આજે મને પહેલી વાર અહીંયા મને જે 2 શબ્દ બોલવાની અને મહેમાનોનું દિલથી સ્વાગત કરવા માટે મને સોંપ્યું છે, એ બદલ તમામ હાઈકમાન્ડનો હું આભાર માનું છું। જોહાર, જય આદિવાસી। થેન્ક યુ। આભાર ચંદ્રિકાબેન।
માનનીય રાહુલ ગાંધીજીનું સ્વાગત આપણા ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ શ્રી માનનીય જગદીશ ઠાકોર સાહેબ ગુલદસ્તા આપીને કરશે. માનનીય રાહુલ ગાંધીજીનું સ્વાગત આપણા ગુજરાતના વિરોધ પક્ષના નેતા શ્રી સુખરામભાઈ રાઠવા ગુલદસ્તા આપી કરશે. માનનીય રાહુલ ગાંધીજીનું સ્વાગત ગુજરાત ઇન્ચાર્જ રઘુભાઈ શર્મા સાહેબ કરશે. માનનીય રાહુલ ગાંધીજીનું સ્વાગત હું પોતે પ્રમુખ હર્ષદભાઈ નીનામાં ચાંદીનો કંદોરો પહેરાવી કરીશ. જિલ્લા પ્રમુખ હર્ષદભાઈ આપણી આદિવાસી પરંપરા મુજબ રાહુલજીને પટ્ટો પહેરાવીને સ્વાગત કરીએ છીએ. આપણે બધા જોરદાર તાલીઓથી રાહુલજીનું અભિવાદન કરીએ. હું વિનંતી કરું છું માનનીય રાહુલ ગાંધીજીનું સ્વાગત દાહોદ જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ ફૂલહારથી સ્વાગત કરશે. તેમાં તમામ પ્રમુખશ્રીઓ આવી ગયા અને શહેર પ્રમુખશ્રીઓ આવી ગયા. હું વિનંતી કરું છું આપણા ધારાસભ્ય શ્રી વજુભાઈ પણદા સાહેબને કે રાહુલ ગાંધીજીનું સ્વાગત તીર કામઠું તથા મુમેન્ટો આપીને કરશે. હું વિનંતી કરું છું ઝાલોદના ધારાસભ્ય શ્રીને કે આદિવાસીની ઓળખ ચાંદીનું કડું પહેરાવીને રાહુલ ગાંધીજીનું સ્વાગત કરશે. હું વિનંતી કરું છું ચંદ્રિકા બહેનને કે આદિવાસીની ઓળખ એવું કડું અને આદિવાસી બંડી પહેરાવી રાહુલજીનું સ્વાગત કરશે. હું વિનંતી કરું છું રાહુલ ગાંધીજીનું સ્વાગત આદિવાસી લીડર તથા તમામ સ્ટેટના ધારાસભ્યશ્રીઓ મોટા ફુલહારથી કરશે. આ પછી વિવિધ ફ્રન્ટલો સેવાદળ એનએસયુઆઈ યુથ કોંગ્રેસ એ તમામ ફ્રન્ટલો તથા સેલો હાજર રહે અને પોતપોતાની ટ્રોફી અને ફુલહાર ગુલદસ્તા તૈયાર રાખે અને આ પછી એમનું સ્વાગત કરશે રાહુલ ગાંધીજીનું. જય જોહાર, જય આદિવાસી, જય આદિવાસી, લડેંગે લડેંगे लड़ेंगे. પ્રદેશ યુથ કોંગ્રેસ વિશ્વનાથ વાઘેલાસી અને દાહોદ જિલ્લાની તમામ ફ્રન્ટલો સેવાદળ એનએસયુઆઈ તમામ ટીમો રાહુલ ગાંધીજીનું પાઘડી દ્વારા અને વિવિધ મુવમેન્ટો દ્વારા સ્વાગત કરશે. જિલ્લા વિરોધ પક્ષના નેતા કિરીટભાઈ પણ રાહુલ ગાંધીજીનું સ્વાગત કરશે. जय जोहार, जय जोहार. પોલીસ મિત્ર સહકાર આપે બહારથી જે 50-60% પબ્લિક બહાર ઊભી છે તેમના માટે ગેટો ખોલી દેવામાં આવે અને સેવાદળના મિત્રોને વિનંતી છે કે આમાં સહકાર આપે.
હવે હું વિનંતી કરીશ ગુજરાત વિરોધ પક્ષના નેતા શ્રી સુખરામભાઈ રાઠવા સાહેબને કે તેમનું સંબોધન કરશે. જય જોહાર. અવાજ ઓછો આવે છે. જય જોહાર, જય બિરસા. આજે આપણી વચ્ચે આપણા સૌના લાડીલા, જેના ઉપર આખા દેશની ગરીબ જનતા અપેક્ષા રાખીને મીટ માંડીને બેઠી છે એવા આપણા દાહોદ વચ્ચે રાહુલજી પધારે છે. ત્યારે સમસ્ત ગુજરાતી પૂર્વ પટ્ટીના આદિવાસી સમાજ અને એ સિવાયના સમાજ વતી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આપણી વચ્ચે સન્માનિત મંચ ઉપર બિરાજમાન સન્માનિત મંચ રાહુલજીને સાંભળવા આવ્યા છે એવા તમામ મારા આદિવાસી આદિવાસી ભાઈઓ બહેનો, આપણે આજે શુભ શરૂઆત કરીએ છીએ આદિવાસી સત્યાગ્રહની. અને એ આદિવાસી સત્યાગ્રહ શા માટે? કોઈક આપણને પૂછશે. આદિવાસી સત્યાગ્રહ એટલા માટે, અમારી યુપીએની સરકાર વખતે વન અધિનિયમ હેઠળ જંગલ ખેડાણની જે જમીન આપી હતી, એને જમીન આપવામાં ભાજપની સરકાર ગુજરાતમાં આદિવાસીઓને જમીન ઓછી આપી છે. જે જમીન આપી છે એ અપૂરતી છે, એનું રેવન્યુ રેકર્ડમાં નામ નથી. સાથે સાથે આદિવાસી વિસ્તારના ઘણા બધા પ્રશ્નો છે. એજ્યુકેશન, રોજગારી, પીવાના પાણીના પ્રશ્નો, અને એની સાથે સાથે આ ભારતીય જનતા પક્ષની સરકાર આદિવાસી અસ્મિતા ઉપર જ્યારે તરાપ મારીને બેઠી છે, ત્યારે આપણે પોતાની સંસ્કૃતિ જાળવવા માટે આપણે તૈયાર રહેવાનું છે. અને એના માટે આજે રાહુલજી આપણે ત્યાં આદિવાસી સત્યાગ્રહની સાથે સાથે આપણી જે મુશ્કેલીઓ છે એ મુશ્કેલીઓ જાણવા માટે પણ આવ્યા છે. માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી, આપણે જાણીએ છીએ કે ગુજરાતમાં જે આદિવાસીઓ વસે છે એ આદિવાસીઓ પર અત્યાચાર થઈ રહ્યો છે. અને એ અત્યાચાર થઈ રહ્યો છે ત્યારે એનું રક્ષણ કરનાર બહુ ઓછા મળે છે. અમારા રાહુલજીએ આ બીડું ઝડપ્યું છે આખા દેશમાં. ત્યારે આપ સૌના વતી એક વિનંતી કરું છું કે તમે અમારા આદિવાસી વિસ્તારને દત્તક રાખીને અમારી સાથે રહેજો. અમારો આદિવાસી વિસ્તાર ગુજરાતની પૂર્વ પટ્ટીમાં 27 બેઠકો અને 13 બેઠકો બીજી એવી છે કે જ્યાં આદિવાસીઓ જે બાજુ મતદાન કરે તે બાજુ સીટ થાય. અમે મનથી નક્કી કરી બેઠા છે કે 2022માં આ ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પક્ષને ખદેડવી છે, સારું શાસન લાવવું છે, કોંગ્રેસનું શાસન લાવવું છે. અને તેના માટે અમારા કોંગ્રેસનો કાર્યકર 10 લાખ કુટુંબમાં 40,000 પરિવારને મળવાનો છે. એનો સંકલ્પ આપણે લેવાનો છે. ત્યારે મારે વધુ નહીં કહેતા, નાના મોડે મોટી વાત કરવી નથી. આપણે બધા રાહુલજીને સાંભળવાના છે. ત્યારે હું નારો લગાવીશ, રાહુલજી તુમ આગે બઢો. તમારે કહેવાનું છે હમ તુમ્હારે સાથ હૈ. રાહુલજી તુમ આગે બઢો. હાથ ઊંચા ઊંચા થયા. રાહુલજી તુમ આગે બઢો. પાછળ બાકી છે હજુ. રાહુલજી તુમ આગે બઢો. ધન્યવાદ. જોહાર. આભાર. હવે મધુસૂદન મિસ્ત્રી સાહેબ, આદિવાસી ચળવળના નેતા એવા મધ, ચારોળ તથા શાકનો છોડ આપી આ સાહેબનું સ્વાગત કરશે. આદરણીય રાહુલ ગાંધીજીનું.
હવે હું આદરણીય જગદીશભાઈ ઠાકોર સાહેબને જે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ શ્રી છે તેમને વિનંતી કરવા માંગુ છું કે આપ સભાનું સંબોધન કરો. હલો, લાઉડ આપજો. આપણા સૌના લોકલાડીલા નેતા આવતા દિવસનો હિન્દુસ્તાનનો એકતા અને ભાઈચારાનું ભવિષ્ય આપણા રાહુલ ગાંધીજી, ડોક્ટર રઘુ શર્માજી, સુખરામભાઈ, મંચસ્થ એઆઈસીસી પ્રદેશ રાજસ્થાન ને મધ્યપ્રદેશથી આવેલા મંચસ્થ મહાનુભાવો, સમગ્ર પૂર્વ પટ્ટીમાંથી આદિવાસી યુવાનો, ભાઈઓ બહેનો અને સમગ્ર ગુજરાતમાંથી પધારેલા કોંગ્રેસના સૌ પદાધિકારીઓ અને વહાલા પત્રકાર મિત્રો, છેલ્લા ઘણા સમયથી આદિવાસી વિસ્તારમાં જુદા જુદા તાલુકાઓમાં, જુદા જુદા જિલ્લાઓમાં આદિવાસી સમાજને હેરાન પરેશાન કરવા માટેના કાવતરાઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર કરી રહી છે. આદિવાસી યુવાનો લડી રહ્યા છે, આદિવાસી બહેનો લડી રહી છે. એ પોલીસ પાસે પરમિશન માંગે છે, પરમિશન નથી આપતી. એ પરમિશન નથી આપતી તો પણ યુવાનો જંગે મેદાનમાં, એ મહિલાઓ જંગે મેદાનમાં આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની કિન્નાખોરી અને તાનાશાહી સરકારની સામે જંગે એલાન કર્યું છે. કોંગ્રેસના આગેવાનો, એ આદિવાસી આગેવાનો હોય કે નોન આદિવાસી આગેવાનો હોય, એમણે બધાએ નક્કી કર્યું કે આ લડત એ આપણી છે. એ ગુજરાતના આદિવાસીઓની લડત એ કોંગ્રેસની લડત છે અને કોંગ્રેસની લડત છેલ્લા 6-8 મહિનાથી કોંગ્રેસે આ લડતનું નેતૃત્વ લીધું છે. આદરણીય મુરબ્બી રાહુલજીને અમે જ્યારે વાત કરી ત્યારે એમણે કહ્યું कि कहो गुजरात के नौजवान आदिवासियों से मैं गुजरात आऊंगा, उनकी लड़त को समर्थन करूंगा. અને એના ભાગરૂપે આજે આપણા નેતા રાહુલજી અહીંયા આવ્યા છે. राहुल जी, हम वचन देते हैं, ये आदिवासी समाज आपको वचन देता है कि 27 हमारी ट्राइबल सीटें हैं, वो तो हम देंगे ही, लेकिन उसके साथ 13 आदिवासी प्रभावित सीटें हैं. 40 से 40 सीट कांग्रेस को देंगे, सपोर्ट करेंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे. ये वादा आदिवासी समाज करता है. हमने तय किया है कि 10 लाख आदिवासी परिवारों को मिलने जाएंगे. वो परिवारों से अपनापन बनाएंगे, पारिवारिक संबंध बनाएंगे, उनके साथ वार्तालाप करेंगे. 10,000 से ज्यादा संविधान सभाएं करेंगे, चौपाल करेंगे, खाटला परिषद करीशुं. અને ખાટલા પરિષદ કરીને આદિવાસીઓના જે પ્રશ્નો છે, આદિવાસીઓની યુપીએ સરકાર, આદરણીય ઇન્દિરાજી, આદરણીય સોનિયાજી, આદરણીય રાજીવજીની સરકારે જે અધિકારો આદિવાસીઓને આપ્યા હતા, એ અધિકારો જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી છીનવી રહી છે ત્યારે અધિકારો પાછા અપાવવા માટેની પ્રતિજ્ઞા કરીએ છીએ. राहुल जी, हम वचन देते हैं कि लास्ट में
हम इंदिरा गांधी संकल्प पत्र लेके जाएंगे ये 10 लाख परिवारों के बीच और वादा करेंगे, वचन देंगे कि बनाओ 2022 में कांग्रेस की सरकार, पहली मीटिंग में, पहली कैबिनेट में आदिवासियों के लिए ये कानून बनेगा, ये वचन देते हैं हम। सर, आदिवासी नौजवान खड़ा हुआ है, वो बोलता है हमें राजनीति करनी है, वो बोलता है हमें समाज सेवा करनी है, वो बोलता है हमें नेतृत्व करना है। मैं कहूंगा राजीव गांधी जी के, राहुल गांधी जी की ओर से कि आओ, जो 10 लाख परिवारों में जाएगा, जो आदिवासी परिवारों को मिलेगा, जो आदिवासी परिवारों का संगठन करेगा, वो ही विधानसभा में टिकट का हकदार बनेगा। ये बात कांग्रेस के मंच से राहुल गांधी जी की कांग्रेस के लिए हम कर रहे हैं। ये नौजवानों को स्टेज कौन दे रहा है? कांग्रेस दे रही है, राहुल जी दे रहे हैं। ये नौजवान जो रोजगार बिना है, उसे रोजगारी देने का काम कांग्रेस करेगी। ये वचन के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय हिंद, जय भारत। આભાર સાહેબ. હું વિનંતી કરીશ ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના ઇન્ચાર્જ શ્રી ડોક્ટર રઘુ શર્મા સાહેબજીને કે તે તેમનું સંબોધન કરશે. कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके लाडले नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई जगदीश ठाकुर जी, हमारे सीएलपी के लीडर भाई सुखराम राठवा जी, कार्यकारी अध्यक्ष भाई हार्दिक पटेल जी, आदरणीय मधुसूदन मिस्त्री जी, अर्जुन मोढवाडिया जी, अमित चावड़ा जी, भरत सोलंकी जी, सिद्धार्थ पटेल जी, परेश धानानी जी, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी, मंच पे बैठे हुए तमाम कांग्रेस पार्टी के आदरणीय नेतागण और यहाँ आज इस पंडाल में आदिवासी अंचल में कोने कोने से आए हुए मेरे आदरणीय भाइयों और बहनों, आज दाहोद की पवित्र धरती पर, ठक्कर बाबा की कर्मस्थली पर राहुल गांधी जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज ये रैली नहीं, ये सत्याग्रह का शुरुआत है। और सत्याग्रह की शुरुआत कब होती है? जब हक और अधिकार नहीं मिलता। कांग्रेस पार्टी ने पासा वन अधिकार नियम बनाए, ये बगल में राजस्थान है, वहां जमीन पे अधिकार आदिवासियों को मिल सकता है। ये 27 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहां अधिकार नहीं मिल सकता। यहां जल, जंगल और जमीन, जिसका मौलिक अधिकार आदिवासी का है, जिसके लिए महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी अब एक सोच के साथ काम कर रहे हैं। क्या गुजरात के आदिवासी को उसका हक और अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्रधानमंत्री जी यहां आते हैं, 20 अप्रैल को आए, सरकारी प्रोग्राम करके गए। मुझे अफसोस है ये कहते हुए कि आदिवासियों के अधिकार के ऊपर, आदिवासियों के हितों की रक्षा के ऊपर इस इलाके में कैसे आदिवासियों को शिक्षा की व्यवस्था होगी, कैसे आदिवासियों को चिकित्सा की सुविधा मिलेगी, कैसे आदिवासियों के रोजगार की सुरक्षा होगी, कैसे आदिवासियों को पीने का पानी मिलेगा। एक शब्द देश का प्रधानमंत्री नहीं बोलता है, ये सोच है। इसीलिए आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को यह सत्याग्रह आज दाहोद की धरती से शुरू करना पड़ा है।
कि जो अधिकार तय किए गए हैं, जिनके कानून बना दिए कांग्रेस पार्टी ने, फिर क्यों गुजरात के आदिवासी को उन अधिकारों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वंचित रख रही है? एक साजिश है। क्या गुजरात के आदिवासियों का भारतीय जनता पार्टी वोट के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है? ये भूलना नहीं चाहिए। ये आदिवासी आज 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर पलायन कर रहा रोजगार के लिए। गुजरात के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक एक ईंट जो लगी है, उसमें आदिवासी का खून, आदिवासी का पसीना और आदिवासी की मेहनत है। ये भूलना नहीं चाहिए बीजेपी के लोगों को। मैं आज राहुल गांधी जी को ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो 6 महीने हमारा ये संघर्ष चलेगा, ईमानदारी के साथ, कांग्रेस का बड़ा नेता हो, कांग्रेस का छोटा नेता हो, कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, 10 लाख आदिवासियों के बीच में हम जाएंगे, अधिकार पत्र भरवाएंगे। क्या तकलीफ आदिवासी समुदाय आज महसूस कर रहा है, वो अधिकार पत्र उनका भरवाया जाएगा। 2 बार हम जाएंगे, हमारे वॉलंटियर्स तैयार होंगे, ट्रेनिंग होगी। एक वॉलंटियर 1 महीने में 2 संविधान चौपाल लगाएगा। जगह जगह संविधान चौपाल होगी, अधिकार के ऊपर बात होगी। क्या हक उनको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। हालात क्या है? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यहां हमने स्कूल खोली, हमारे महान नेताओं ने, हमारी सरकार का नेतृत्व करने वाले नेताओं ने यहां स्कूलें खोली, अध्यापक लगाए, यहां अस्पताल खोले, डॉक्टर लगाए, नर्सिंग स्टाफ लगाया। बीजेपी ने क्या किया? वो बने बनाए जिला अस्पताल को आपने निजी हाथों में दे दिया। अब आदिवासी की पॉकेट में अगर पैसा नहीं है तो उस अस्पताल को देखेगा कि अपना इलाज कराएगा। हालात गंभीर है। और आज इसीलिए राहुल गांधी जी एक नई चेतना, एक नया सत्याग्रह, आदिवासी के जिंदगी में परिवर्तन लाने का संदेश देने के लिए हमारे बीच में आए हैं। एक सोच है, मुझे याद है जब देश के प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी जी, प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला दौरा आदिवासी इलाके में किया। ये सोच है हमारे नेताओं का। इंदिरा गांधी जी आज भी आदिवासियों के दिलों में बसती है यहां। और आज राहुल गांधी जी उसी सोच के साथ बराबर हम लोगों से पूछते हैं आदिवासियों के अधिकार की रक्षा कैसे होगी, क्या कार्यक्रम कांग्रेस चलाएगी, कैसे अधिकार मिलेगा। और आने वाले समय में हमारा संकल्प है राहुल जी, द्वारका में हमारा चिंतन शिविर हुआ था, पूरे प्रदेश के तमाम नेता मिले थे, सबने संकल्प पत्र जाहिर किया था वहां। और उस संकल्प पत्र के साथ एक संकल्प यह भी लिया था कि गुजरात में 2022 में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, 125 प्लस सीट जीतकर हम सरकार बनाएंगे। बीजेपी इस मुगालते में नहीं रहे कि हमारे पास संसाधन है, लूट है, उद्योगपति है। ये हमारे ऐसा प्रदेश मैंने देखा नहीं। अरे विपक्ष को आंदोलन करने की परमिशन, ये डेमोक्रेसी खत्म करने की साजिश है। ये हमारा भाई बैठा है जिग्नेश मेवानी, एक मुकदमे में सजा हुई। सजा क्यों हुई? इन्होंने बिना परमिशन आंदोलन किया। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? आंदोलन हमारा अधिकार है। अगर आप सरकार में बैठे हो और हम विपक्ष में हैं, जनता की आवाज कुछ लोग हैं, जनता की आवाज बुलंद करने का काम विपक्ष के रूप में कांग्रेस नहीं करेगी तो और कौन करेगा? पूरे देश में कहीं नहीं है। यह आंदोलन के लिए परमिशन लेना पड़ता है। लोकतंत्र खतरे में है साथियों। आदिवासियों को समझना पड़ेगा ये लालच और ये जिस तरह का धोखा लंबे समय से बीजेपी आपके साथ करती रही है, आज उससे निकलना पड़ेगा। सच्चाई का रास्ता लेना पड़ेगा। और सच्चाई का रास्ता ये तिरंगा झंडा है, जिसने आजादी दिलाई, जिसने आपके जीवन में परिवर्तन की अलग जगाई, जिसने निर्णय किए, कानून बनाए। आज उस विचारधारा के साथ खड़े हुई है आपके जीवन में परिवर्तन,
राहुल गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लेके आएगी, ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। આભાર રઘુ શર્મા સાહેબ। હવે હું વિનંતી કરીશ, આદિવાસી સત્યાગ્રહના કેમ્પેનનું લોન્ચિંગ માન્ય રાહુલ ગાંધીજી કરશે। सर एक मिनट का प्रोसेस सर मैं कर लेता हूं। जय जोहार, जय आदिवासी। आज इस मंच पर इस आदिवासी सत्याग्रह की शुरुआत करने के लिए हमारे देश के नेता, जन जन के नेता, कांग्रेस के नेता सम्माननीय राहुल गांधी जी उपस्थित हैं। मंच पर हमारे आदरणीय इस कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सम्माननीय रघु शर्मा जी तथा सीएलपी लीडर हमारे सुखराम भाई और प्रांत अध्यक्ष सम्माननीय जगदीश जी ठाकुर जी उपस्थित हैं तथा तमाम सम्मानीय मंच और यहां आए हुए गुजरात से, पूर्ण गुजरात से आए हुए हमारे आदिवासी भाई, आज एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत कांग्रेस करने जा रही है जिसके लिए, आपके उद्धार के लिए कांग्रेस पार्टी सदैव रही है। इस 27 साल के कुशासन में जो अन्याय और जो भ्रष्टाचार और आदिवासियों के साथ जिस तरह से खिलवाड़ हुआ है, उस खिलवाड़ को खत्म करने के लिए आज हमारे राहुल जी आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। उस सत्याग्रह की शुरुआत हम यहां करने जा रहे हैं। उसकी एक शुरुआत करते समय सर एक वीडियो क्लिपिंग तैयार की गई है, उस वीडियो क्लिपिंग को आपके सामने उपस्थित करते हैं। दीपक, અને સમાજના મુખ્ય પ્રવાહમાં જોડવા માટે વિવિધ યોજનાઓ બનાવી, પણ ભાજપના કુશાસનમાં આદિવાસીઓની સ્થિતિ કફોડી બની છે। ભાજપ શાસકોની આદિવાસી વિરોધી માનસિકતા આદિવાસી સમાજના જળ, જંગલ, જમીન અને હક અધિકાર પર તરાપ, अन्याय, અત્યાચાર સામે આદિવાસી ભાઈ બહેનોને જાગૃત કરવા કોંગ્રેસ આવી રહી છે। આદિવાસીઓની વહારે ગુજરાતના આદિવાસી વિસ્તારોમાં વસતા આદિવાસી ભાઈ બહેનોને કોંગ્રેસના नेताओं, कार्यकर्ताओं प्रत्यक्ष रीते મળશે અને તેમની સમસ્યાઓ સાંભળશે। આદિવાસી સત્યાગ્રહના માધ્યમથી આદિવાસી ભાઈ બહેનો તેમનો અવાજ બુલંદ કરશે। ભાજપ સરકારના ભ્રષ્ટાચારને ખુલ્લો પાડીને પોતાનો અધિકાર માંગશે। ગુજરાતમાં 2001 પછી આદિવાસીઓના કલ્યાણ માટેની યોજનાઓને અભેરાઈએ ચડાવી દેવામાં આવી છે। ગુજરાતની ભાજપ સરકારે વનબંધુ કલ્યાણ યોજના સહિત અનેક યોજનાના નામે આદિવાસીઓ માટે પેકેજ જાહેર કરીને ખુલ્લી છેતરપિંડી આચરી છે। પેકેજના નામે આદિવાસીઓને રાબેતા મુજબ મળતી સુવિધા અને હક્કો બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે। તાપી નદી લિંક પ્રોજેક્ટ, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, વેદાંત પ્રોજેક્ટ સહિતના સરકારી કામોની આડમાં આદિવાસીઓની જમીન છીનવાઈ રહી છે। શિક્ષણ, રોજગાર અને આરોગ્ય સેવાઓથી આદિવાસી વિસ્તારોને વંચિત રાખવામાં આવી રહ્યા છે। ત્યારે કોંગ્રેસ આદિવાસી ભાઈ બહેનોને તેમનો હક પરત અપાવવા વચનબદ્ધ છે। કોંગ્રેસનો હાથ હંમેશા આદિવાસીઓની સાથે રહ્યો છે। આઝાદી બાદ કોંગ્રેસે આદિવાસી ભાઈ બહેનોને તેમના મૂળભૂત હક આપ્યા। ત્યારે આવો આપણે સૌ કોઈ આદિવાસી સત્યાગ્રહમાં જોડાઈએ, આપણા અધિકારની લડાઈ લડીએ। ये लड़ाई आपके लिए, ये लड़ाई आपके लिए कांग्रेस लड़ने के लिए तैयार है। और इस मंच के पर आपका लाडला इंदिरा जी का पोता, राजीव जी का लड़का, हमारा युवक कांग्रेस का नेता, हमारे कांग्रेस का नेता आपके बीच उपस्थित है। इस लड़ाई को हम कैसे लड़ेंगे, इसको क्रियान्वित कैसे करेंगे, इसकी छोटी सी क्लिप भी आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। आप कृपया ध्यान से देखिएगा। सत्याग्रह भारत की आजादी का अहम हिस्सा रहे हैं और ये सत्याग्रह अपने अधिकारों के लिए किए गए, अपने हक के लिए किए गए, अपने जंगल, जमीन, अपनी वन संपदा और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए किए गए। समय समय पर कांग्रेस इन सत्याग्रहों का अहम हिस्सा रही। आज भी भाजपा सरकारी कंपनियों को बेच रही है। जंगल, जमीन और नदियां भी बेचे जा रहे हैं जो इस देश की संपत्ति हैं। गुजरात की जन विरोधी नीतियां और पार तापी नदी लिंक परियोजना इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। तब एक और सत्याग्रह की जरूरत है और जल्द ही आदिवासी सत्याग्रह के माध्यम से कांग्रेस आदिवासियों की आवाज और बुलंद करेगी। फेज पहला, 10 लाख आदिवासी परिवारों तक पहुंचा जाएगा। आदिवासी सत्याग्रह के लिए 5000 कार्यकर्ताओं को तैयार करना।
मुखिया को आदिवासी पत्र देना और घर के बाहर आदिवासी समुदाय की मांगों का स्टिकर चिपकाना, मतदाताओं का ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना और उस डाटा को कॉल सेंटर द्वारा वेरीफाई करना, डाटा का एनालिसिस करना और उसका उपयोग कर सोशल मीडिया के लिए उचित कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाना। फेज 2, सत्याग्रहियों के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप और संविधान प्रशिक्षण का आयोजन करना, संविधान चौपाल का प्रारूप समझाना, पकड़ मजबूत करने के लिए 40 सीटों पर 10,000 संविधान चौपाल का आयोजन हर महीने करना। चरण 3, चुनाव से पहले 10 लाख घरों तक हमारे संकल्प इंदिरा संकल्प कार्ड के स्वरूप में पहुंचाना। आदिवासी सत्याग्रह से कैसे जुड़ें? आदिवासी सत्याग्रह से जुड़ने के लिए www.adivasisatyagrah.in पर लॉगिन करें। इस कार्यक्रम के तहत 40 आदिवासी सीटों पर कांग्रेस पार्टी आदिवासी समुदाय को सत्याग्रह के साथ जोड़कर गुजरात में कांग्रेस सरकार बनाने के लिए वचनबद्ध है। जय जौहार, जय आदिवासी। धन्यवाद। सत्याग्रह ये क्रियान्वित कैसे करेगी कांग्रेस, ये आपके सामने मेरे भाइयों रखा गया है। इसके साथ कांग्रेस अपने वादों को कैसे पूरा करेगी, आपके बीच में कैसे आएगी और क्या क्या वादे रहेंगे, इसके एक वादा पत्र, एक पत्र आपके सामने राहुल जी से निवेदन करूंगा कि विमोचन करेंगे हमारे एआईसी सेक्रेटरी वीरेंद्र सिंह जी और हमारे यहाँ के नेता जिन्होंने अभी अभी संघर्ष किया ऐसे जिग्नेश मेवानी जी, उनसे निवेदन करूंगा कि सामने आए राहुल जी के हाथ से वो विमोचन कराए। जिग्नेश मेवानी जी। ये वादा कैसे पूरा होगा, ये वादा आपको पढ़कर सुनाएंगे हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट जगदीश जी ठाकुर जी। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि संक्षिप्त में सुन के वो पढ़ के सुनाए, सबके साथ ये वादा अपना उनके सामने हाजिर करें। आदिवासी पत्र भाई लाउड आपजो। हेलो। आदिवासी पत्र કોંગ્રેસનો નિર્ધાર જળ જંગલ જમીનનો અધિકાર જે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર અંગ્રેજોના ગયા પછી ભારતની કુદરતી સ્ત્રોત પાણી જંગલ જમીન કંપનીઓને ખોટી રીતે આપી રહી છે, આદિવાસી વિસ્તારના હક અધિકાર છીનવી રહી છે, જળ જંગલ જમીનના અધિકારો છીનવી રહી છે, તેનું રક્ષણ કરવા આદિવાસી સત્યાગ્રહ નીચેની માગણીઓ ઉપર એકજૂટ છે। ભાજપની સામે સંઘર્ષ કરીને લડીશું। કોંગ્રેસ સરકાર દ્વારા 1996 માં લાવવામાં આવેલ પૈસા કાયદાનો સંપૂર્ણ અમલ થાય, જળ જંગલ અને જમીનના અધિકાર આદિવાસીઓને મળે, વન અધિકાર 2006 નો સંપૂર્ણ અમલ કરવામાં આવે, આદિવાસી અસ્મિતા અને સંસ્કૃતિ સુરક્ષિત રહે, આદિવાસીઓના જળ જંગલ અને જમીન પર જે કબજા છે એ કબજાને કાયમી કરવામાં આવે, આ તાપી નર્મદા લિંક વેદાંત અને બીજા જે પ્રોજેક્ટના નામે આદિવાસીઓને ઘર વિહોણા કરવામાં આવી રહ્યા છે એની સમીક્ષાઓ કરવામાં આવે, સરકારી ભરતીમાં ફિક્સ પગાર અને કોન્ટ્રાક્ટ પદ્ધતિથી યુવાનોનું શોષણ થઈ રહ્યું છે જે બંધ કરી યુવાનોને નિયમ અનુસાર ભરતી કરવા। કોરોનામાં જે લાખો આદિવાસી ભગવાનના ભરોસે રહ્યા, પોતાના પરિવારની વચ્ચે તરફડીને જવાન દીકરો મરી ગયો, સરકારી નોકરી કરતા કોરોનામાં અધિકારી મરી ગયા, એવા લોકોને 4 લાખનું વળતર, ચાલુ નોકરીએ જે સરકારી કર્મચારી મૃત્યુ પામ્યા હોય એના વારસદારને નોકરી, આ તમામ વચનો લઈ અને કોંગ્રેસ આદિવાસી પત્ર લઈ અને સંઘર્ષનો રસ્તો કરી અને આ 40 સીટો ઉપર જશે અને સંઘર્ષના નારા સામે
તાનાશાહોની સામે લડાઈના મંડાણની શરૂઆત કરશે. થેન્ક યુ. ये वादा आपके सामने प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रखा है और ये वादा पूरा करने के लिए आपके बीच में हमारा कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता आएगा. जैसा कि संख्या आपको बताई गई है, वो संख्या के पास 10 लाख लोगों के घरों में हमारा कार्यकर्ता पहुंचेगा. और वो कैसे पहुंचेगा, उसके पास क्या साहित्य रहेगा, उसके किट का विमोचन सम्माननीय राहुल जी के हाथ से करना चाहते हैं. उस किट का विमोचन करने के लिए मैं हमारे एलओपी सुखराम जी और हमारे पूर्व अध्यक्ष सम्माननीय अर्जुन मुडवाड़िया जी से निवेदन करूंगा कि किट का विमोचन राहुल जी के हाथों से करवाएं. जय आदिवासी, जय जोहार. ये सारा साधन होने के बाद हमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से किस तरह से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी आपके साथ कैसे संपर्क में रहेगी और आप कितनी आसानी के साथ इस सत्याग्रह से जुड़ सकते हैं, उसके लिए ऐप का विमोचन करने जा रहे हैं. मैं निवेदन करता हूं सम्माननीय हार्दिक पटेल जी से और हमारे सेक्रेटरी एआईसी सेक्रेटरी संदीप जी से कि सम्माननीय राहुल जी के हाथों से वो ऐप का लॉन्च करें. कार्य को सरलता से करने के लिए इस मोबाइल ऐप का प्रयोग किया जाएगा. सबसे पहले कार्यकर्ता को खुद को साइन अप करना होगा और अपनी सारी डिटेल्स जैसे नाम, मोबाइल नंबर, विधानसभा, वोटर आईडी नंबर और अपने नेता का नाम डालना होगा. ये डालने के बाद एक पासवर्ड जनरेट होगा और उसके डालते ही कार्यकर्ता की आईडी एक्टिव हो जाएगी. लॉगिन करने के बाद जो भी ऑप्शंस जैसे नई एंट्री, सामूहिक एंट्री, रिमार्क या इंस्ट्रक्शन को क्लिक करना है, क्लिक करेगा और जानकारी भरेगा. नई एंट्री 2 तरीके से भरी जा सकेंगी, डाटाबेस से और मैन्युअली. ग्रुप एंट्री वाले ऑप्शन में विधानसभा वार हुई सभी एंट्री का डाटा दिखेगा. रिमार्क वाले ऑप्शन में कार्यकर्ता कोई भी रिमार्क या मैसेज प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेज सकता है. वहीं प्रदेश कार्यालय से कार्यकर्ता को कोई सूचना दी जानी है तो वो भी दी जा सकेगी. ये तो होता है सत्याग्रह में आदिवासी मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन के ये तो होता है कि आप ऐप के थ्रू किस तरह इस सत्याग्रह से जुड़ सकते हैं, किस तरह कांग्रेस के कार्यकर्ता आपके घर आएंगे और किस तरह आपसे बात करेंगे और किस तरह आपको इस आंदोलन से जोड़ेंगे. इसमें एक वेबसाइट का भी उद्घाटन आज हम करने जा रहे हैं राहुल जी के हाथ से. उस वेबसाइट पे सारे आपके साथ किए हुए अत्याचार, उस अत्याचारों के लिए किस तरह कांग्रेस लड़ेगी, क्या क्या योजनाएं रहेगी, कौन कौन से माध्यम जुड़े रहेंगे, इसकी सबकी जानकारी के लिए आपके सामने वेबसाइट प्रस्तुत करने जा रहे हैं. मैं निवेदन करता हूं अमित चावड़ा जी से और भरत सिंह सोलंकी साहब से कि दोनों मिलकर आदरणीय राहुल जी से वेबसाइट का विमोचन कराएं. आदिवासी सत्याग्रह कांग्रेस की एक मुहिम है जिसमें 10,000 सत्याग्रही 10 लाख आदिवासी परिवारों को कांग्रेस से सीधा जोड़ने का काम करेंगे. इसी क्रम में आदिवासी युवाओं को जोड़ने और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक वेबसाइट का भी लॉन्च किया जाएगा, www.adivasisattyagrah.in. होम पेज पर एक वीडियो के माध्यम से सत्याग्रह का विवरण उपलब्ध होगा. उसके नीचे आदिवासियों के हक में कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाई गई 9 मांगों की सूची है. हर मांग बिंदु पर क्लिक करने पर उस मांग का विवरण और वीडियो होगा. वेबसाइट पर कांग्रेस द्वारा किए गए आदिवासी कल्याण कार्यों का संपूर्ण विवरण भी उपलब्ध होगा. होम पेज पर डाउनलोड सेक्शन से लोग कार स्टिकर, टी शर्ट डिजाइन और मांग पत्र की कॉपी भी डाउनलोड कर सकेंगे. इस वेबसाइट पर कांग्रेस कार्यकर्ता पंजीकरण कराकर
आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभा सकेंगे। एक चैट बॉट के द्वारा आदिवासी परिवार अपना नाम, फोन नंबर, वोटर आईडी की जानकारी भरकर सीधा आंदोलन से जुड़ सकेंगे और अहम जिम्मेदारी निभा सकेंगे। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि वादा पत्र, ऐप, वेबसाइट, इसकी सारी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की है। इसी के साथ, ये सब माध्यमों के साथ संगीत के को भी जोड़ा गया है कि संगीत के माध्यम से आपके बीच कैसे पहुंचा जाए। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय राहुल जी से कि ये गीत का विमोचन वो करें। कुदरत जेवी अमुने कुदरते छे दीदा अणमोल दान हमें कुदरत जेवी कुदरत ना छिए मोंघेरा संतान पण कई घड़ीए आव्यो रे एक हण तो शैतान अमुने लूटी गयो बधु छूटी गયું भाई सदियों वरदान जल जंगल जमीन नो अधिकार कांग्रेस नो निर्धार जल जंगल जमीन नो अधिकार कांग्रेस नो जल जंगल जमीन नो अधिकार कांग्रेस नो ज निर्धार। हमने शिक्षण नहीं करी वातो पण न शिक्षण कदी ए आप्यू करी कागड़ ऊपर वातो एणे नाणु छे बस छाप्यू जल जमीन ने जंगल केरा हक्को छीन लीधा मालिक हता अमे तो अमने गुलाम एणे कीधा ए हाँ एणे विकास नाना में कीधा छे अनहद अत्याचार जल जंगल जमीन नो अधिकार कांग्रेस नो निर्धार जंगल जमीन नो अधिकार कांग्रेस नो जल जंगल जमीन नो अधिकार कांग्रेस नो निर्धार। कोई सुविधाओं ना आपी करी छे कायम वातो ना कदी वीतवा दीदी अमारी काली बम्मर रातो कस्तूरी छी हरणी हमने गरीबों के जवास कायम क्षेत्राया छिए अमुकी भाजप परास ए हाँ खंतीला मानवी रे आमे सोचिए बिन रोजगार जल जंगल जमीन नो अधिकार कांग्रेस नो निर्धार आदिवासी अधिकार माटे आदिवासी सत्याग्रह में जोड़ाइए। आदिवासी सत्याग्रह में जोड़ावा माटे adivasisatyagrah.in पर लॉगिन करो। आदिवासी सत्याग्रह कांग्रेस नो निर्धार जल जंगल अने जमीन नो अधिकार। धन्यवाद। एक बार जोर से एक नारा हो जाए, जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय जोहर। आवाज नहीं आ रही, थोड़ी जोर से होना चाहिए, उनके कानों तक पहुंचनी थी। जय जोहर, जय राहुल गांधी, जय राहुल गांधी। धन्यवाद। દોસ્તો, પંડાલ ચકાચક ભરાઈ ગયો છે, મેદાનમાં પણ ઊભી રહેવાની જગ્યા નથી અને 50% લોકો રસ્તામાં આવી રહ્યા છે, જેનાથી સાબિત થાય છે કે 2022 કોંગ્રેસ લાવીશ। આ રેલીને આપણે નામ આવ્યું છે આદિવાસી સત્યાગ્રહ રેલી। આપણે સત્યાગ્રહ કરવાનો છે તમામ આદિવાસીઓ મળીને
માઇનોરિટીએ મળીને, ઓબીસીએ મળીને, એસી સમાજે મળીને, તમામ સમાજે મળીને સત્યાગ્રહ કરવાનો છે. આ સત્યાગ્રહ મોંઘા શિક્ષણ સામે, આપણું જળ, જંગલ અને જમીન બચાવવા સામે, આ મોંઘવારી સામે આ સત્યાગ્રહ કરવાનો બધાએ મળીને. હવે હું વિનંતી કરીશ આદરણીય રાહુલ ગાંધીજીને કે આ સભાનું સંબોધન કરે. रघु शर्मा जी, जगदीश ठाकुर जी, सुखराम राठवा जी, मधुसूदन मिस्त्री जी, भारत सोलंकी जी, अर्जुन मोडवाडिया जी, सिद्धार्थ पटेल जी, शक्ति सिंह गोहिल जी, अमित चावड़ा जी, परेश धनानी, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, हर्षद निनमा, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका आज यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। ये आज एक पब्लिक मीटिंग नहीं है, ये एक आंदोलन, एक सत्याग्रह की शुरुआत है। दो 2014 में नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने और उससे पहले वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। जो काम उन्होंने गुजरात में शुरू किया, वो आज हिंदुस्तान में कर रहे हैं। जिसको गुजरात मॉडल कहा जाता था, आज दो हिंदुस्तान बन रहे हैं। एक अमीरों का हिंदुस्तान, उसमें चुने हुए लोग हैं, बड़े बड़े अरबपति, ब्यूरोक्रेट्स, जिनके पास सत्ता है, धन है, अहंकार है। और दूसरा हिंदुस्तान भारत की आम जनता, आम नागरिक का हिंदुस्तान। पहले ये गुजरात में टेस्ट किया गया और उसको हिंदुस्तान में अब लागू कर दिया है।
कांग्रेस पार्टी दो हिंदुस्तान नहीं चाहती है। हमें दो नहीं चाहिए, हमें एक हिंदुस्तान चाहिए। और उस हिंदुस्तान में सबका आदर होना चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको अस्पताल, स्वास्थ्य की सेवा मिलनी चाहिए। जो बीजेपी का मॉडल है, दो हिंदुस्तान का, दो गुजरात का मॉडल, उसमें जनता का जो धन है, क्योंकि ये जो धन है, ये जंगल है, जमीन है, जल है, ये किसी उद्योगपति का नहीं है, ये आपका है, आदिवासियों का है, गरीबों का है, कमजोर लोगों का है, हिंदुस्तान के हर नागरिक का है। मगर इसका फायदा आपको नहीं मिलता है। यूपीए की सरकार थी तो हमने पूरी कोशिश की, जो हिंदुस्तान का धन है, जल, जंगल, जमीन, हमने पूरी कोशिश की कि इसका फायदा हिंदुस्तान के आम नागरिक को, दलितों को, आदिवासियों को, युवाओं को, सबको मिले। और हमने बहुत बड़े कदम उठाए, पैसा कानून लाए, जिसके माध्यम से आपकी जमीन, जो आपका हक है, आपको वापस मिले। मनरेगा दिया, 100 दिन काम की गारंटी, पूरे देश में उसको चलाया और करोड़ों लोगों को मनरेगा से फायदा मिला। जमीन अधिग्रहण बिल लाए। पहले क्या होता था, बिना आपसे पूछे आपकी जमीन छीन ली जाती थी, कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाता था, कभी कभी व्यक्ति को मालूम भी नहीं होता था कि उसकी जमीन छीन ली गई। अंग्रेजों के समय का कानून था, हमने उसको बदला। बिना पूछे आपसे जमीन नहीं ली जा सकती। अगर जमीन ली जाएगी, पूछकर ली जाएगी और फिर आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा कॉम्पनसेशन मिलेगा। यह हमने करके दिखाया। बीजेपी आई, प्रधानमंत्री ने लोकसभा में पूरी दुनिया के सामने मनरेगा का मजाक उड़ाया। कहते हैं मैं इसको रद्द करना चाहता हूं मगर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि देश को याद हो कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था। और आज देखिए, कोविड के समय अगर मनरेगा नहीं होता तो देश की हालत आपको मालूम। और उसी प्रोग्राम को बीजेपी आज चला रही है। प्रधानमंत्री आए, नोटबंदी की, आपके जेब में से पैसा निकाला, आपको कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है, बैंक के सामने आपको खड़ा कर दिया। पूरा देश बैंक के सामने खड़ा था। पूरे देश ने
अपनी कमाई का पैसा बैंक में डाला। काले धन के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। अरबपतियों को फायदा हुआ। वही लोग जो अमीरों के हिंदुस्तान में जीतते हैं, हवाई जहाज में उड़ते हैं, उनको फायदा हुआ, मगर आम नागरिक को कुछ नहीं मिला। उसके बाद जीएसटी लागू की। एक बार फिर ऐसी जीएसटी बनाई कि जो कमजोर व्यक्ति है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छोटा दुकानदार हो, उसको नुकसान हो और अरबपतियों को फायदा मिले। तो जो भी इन्होंने किया है, चाहे वो गुजरात में, चाहे वो हिंदुस्तान में, इन्होंने दो हिंदुस्तान बनाने के लिए किया है। एक अमीरों का हिंदुस्तान जिसमें चुने हुए लोग कोई भी सपना देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं, कुछ नहीं। और दूसरा हिंदुस्तान जिसमें लाखों करोड़ लोग रहते हैं, गरीबी में रहते हैं, कोरोना के समय अस्पताल में जाते हैं, मरने के लिए अस्पताल जाते हैं, ना वहां उनको ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा, ना वेंटिलेटर मिलेगा। प्रधानमंत्री कहते हैं थाली बजाओ, थाली बजाओ। उसके बाद कहते हैं मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। और हमारे मीडिया के मित्र यह सवाल नहीं उठाते कि गुजरात में 3 लाख लोगों ने दम तोड़ा है। ये नहीं कहते कि गुजरात में 3 लाख लोग मरे हैं। ये नहीं कहते ये नहीं कहते कि गंगा मां लाशों से भर गई थी। ये नहीं कहते कि हिंदुस्तान में 50-60 लाख लोग मरे। ये कहते हैं थाली बजाओ, लाइट जलाओ। और फिर टीवी पे आपको किसी आदिवासी का चेहरा नहीं दिख सकता। कभी देखा आपने आदिवासी नेता का चेहरा टीवी पे? आपको गरीब व्यक्ति का चेहरा नहीं दिख सकता, किसान का चेहरा नहीं दिख सकता, छोटे दुकानदार का चेहरा नहीं दिख सकता। नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखेगा। और इस देश में किसी का चेहरा है ही नहीं। 24 घंटा एक ही चेहरा आपको दिखेगा। अब यहां क्या हो रहा है? गुजरात में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है? जो आपका धन है, जल, जमीन, जंगल, ये आपका है। ये गुजरात की सरकार का नहीं है। ये आपके चीफ मिनिस्टर का नहीं है। ये गुजरात के चुने हुए बिजनेसमैन का नहीं है। ये आपका है। और इस जल, जमीन और जंगल
का फायदा आपको नहीं मिल रहा है। और गुजरात का हर आदिवासी इस बात को गहराई से समझता है, क्योंकि उसको हर रोज इस बात का सामना करना पड़ता है। कोरोना आता है, आदिवासी भाई अस्पताल में जाता है, प्राइवेट अस्पताल में जाता है, उससे पैसा मांगते हैं, पैसा नहीं दे पाता है, वहां दम तोड़ देता है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में जाना नामुमकिन है। सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस सब बंद कर दिए हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक बंद कर देते हैं और पूरा का पूरा प्राइवेटाइज कर देते हैं, उन्हीं चार पांच लोगों के हवाले कर देते हैं। वही बात अस्पतालों में। रोजगार की बात छोड़ दीजिए। रघु शर्मा जी ने भाषण में बहुत अच्छी बात बोली। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात होती है, बड़ी इमारतें बनती हैं, सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, हर ईंट पर आदिवासियों का हाथ लगता है, हर ईंट पर आपका हाथ लगता है। आप उठाते हो, आप रखते हो, आप सीमेंट लगाते हो, आप पेंटिंग करते हो। मैं आपसे पूछता हूं, आपने गुजरात बनाया, गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, गुजरात की सड़कें बनाई, आपको क्या मिला? आपको कुछ नहीं मिला। ना शिक्षा मिली, ना स्वास्थ्य मिला, ना रोजगार मिला, कुछ नहीं मिला। इसीलिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। आपके दिल में जो आवाज है, जो गुजरात के हर आदिवासी के दिल में है, आपके दिल में, आपके अंदर बंद है। रोज ये आवाज आपके अंदर बंद रहती है। हम इस आवाज को इस आंदोलन के माध्यम से सड़क पर उतारना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं। कि गुजरात की सरकार को, जो आदिवासियों के दिल में है, जो आदिवासी चाहते हैं, वो सुनाई दे, क्योंकि ये सरकार आपकी आवाज को सुन नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी आपके साथ मिलकर इस आवाज को इतना मजबूत बनाना चाहती है कि गुजरात छोड़ो, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को यह आवाज सुनाई दे जाए। राजस्थान में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, हमारी सरकारें हैं। हमने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव के समय गारंटी दी। हमने कहा, छत्तीसगढ़ में कहा कि देखिए, किसानों का कर्जा माफ होगा और धान 2,500 रुपए में किसान बेचेगा, सरकार खरीदेगी। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, हमने जो कहा था हमने करके दे दिया। तो हम यहां वायदे करने नहीं आए हैं। हम आपसे मिलकर समझना चाहते हैं कि आदिवासियों के लिए हमें क्या करना है। आंदोलन का लक्ष्य है, आंदोलन का लक्ष्य है कि आदिवासी क्या चाहता है, और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, कांग्रेस पार्टी आदिवासियों को क्या गारंटी देगी। खोखले शब्द नहीं,
गारंटी कि अगर हमारी सरकार आई, हम गारंटी करके 100% ये काम आपको हम करके दे देंगे। राजस्थान में हमने स्वास्थ्य का मॉडल तैयार किया है। हर जगह हम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोल रहे हैं। 10 लाख रुपए मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है राजस्थान में। 5 लाख रुपए एक्सीडेंट क्लेम इंश्योरेंस मिलता है। मुफ्त में दवाई मिलती है, मुफ्त में मेडिकल इन्वेस्टिगेशन होता है, सारे के सारे ओपीडी मुफ्त। और सरकारी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर सब जगह खोल रखे हैं। मगर यहां पे पूरा का पूरा प्राइवेटाइज करा जा रहा है और फायदा उन्हीं लोगों को होता है, 2-3 लोगों को होता है। तो हम गुजरात के लिए स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में, दूसरा उदाहरण देता हूं, छत्तीसगढ़ में हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल का पूरे प्रदेश में जाल बिछा दिया है। प्राइवेट स्कूल नहीं, सरकारी स्कूल, जिसमें गरीब से गरीब लोग अपने बच्चों को भेजकर अंग्रेजी सिखा सकते हैं। तो यह काम हम यहां करना चाहते हैं। यहां पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं, तापी रिवर लिंक प्रोजेक्ट बनता है, आपसे आपका पानी छीना जाता है, अरबपतियों को दिया जाता है, कोई फायदा नहीं होता है। मैं तो आपसे सीधा कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी यहां चुनाव जीतेगी, ये जो रिवर लिंकिंग का प्रोजेक्ट है इसको हम बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे। संघर्ष का समय है। बिरसा मुंडा जी ने रास्ता दिखाया था, गोविंद गुरु जी ने रास्ता दिखाया था। अब गुजरात के आदिवासियों को, खासतौर से गुजरात के आदिवासी युवाओं को एक साथ मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा। बीजेपी की सरकार आपको कुछ नहीं देने वाली है, आपको लेना पड़ेगा। कुछ नहीं देंगे वो आपको, आपसे छीनेंगे, जो आपका है वो छीनेंगे। अब आपको जो आपका है उनसे छीनना पड़ेगा। और बिना डरे, यहां जिग्नेश बैठा है, पहली बार मैंने सुना आंदोलन करने के लिए परमिशन की जरूरत है। सिर्फ गुजरात में, और दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे भैया आंदोलन करने के लिए परमिशन की जरूरत है। 3 महीने की जेल दे दी। मगर मैं जिग्नेश को जानता हूं, इसको आप 10 साल की जेल दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ऐसे ही गुजरात में लाखों युवा हैं जो सच्चाई को समझते हैं, जो जानते हैं गुजरात मॉडल क्या है, नरेंद्र मोदी जी का मॉडल क्या है, जानते हैं, समझते हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, नया गुजरात बनाना पड़ेगा। आपके भविष्य की बात है। आप रोजगार चाहते हो, शिक्षा चाहते हो, स्वास्थ्य चाहते हो, ये लोग आपको नहीं देने वाले हैं। ये लोग सिर्फ
2-3 अरबपतियों को आपका भविष्य बेचना चाहते हैं। तो आपको गुजरात के युवा को, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, जो भी हो, हर जात का हो, आप सबको मिलकर खड़ा होना पड़ेगा। आपके भविष्य की लड़ाई है। हम इस लड़ाई में, कांग्रेस पार्टी और मैं, हम इस लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं, 24 घंटा खड़े हैं। और एक बार फिर जो हमारा पुराना मॉडल हुआ करता था, कोऑपरेटिव मॉडल, जनता का मॉडल, अमूल का मॉडल, उस मॉडल को हम फिर गुजरात में लाना चाहते हैं, जहां पे जनता की आवाज, जो जनता के दिल में हो, जनता की आवाज सरकार को चलाए, मिलकर, एक साथ मिलकर सरकार को चलाए। आज 2-3 लोग सरकार को चलाते हैं, जनता चुप बैठी है, डरी हुई है। 24 घंटा मीडिया डिस्ट्रैक्ट करती रहती है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। नरेंद्र मोदी की फोटो दिखा देंगे, किसी एक्टर का चेहरा दिखा देंगे, एक्ट्रेस का चेहरा दिखा देंगे, ध्यान उधर ले जाएंगे, मगर जो सच्चाई है उसके बारे में ये कुछ नहीं बोलेंगे। सही बोला ना? तो अब जनता को, युवाओं को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। आप सच्चाई जानते हो, समझते हो, पहचानते हो। अब उस सच्चाई के लिए लड़ना पड़ेगा, बिना डरे लड़ना पड़ेगा। और पूरा भरोसा है कि आने वाले चुनाव में यहां पे गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और इस आंदोलन के बाद उस सरकार में आदिवासियों की आवाज होगी, आदिवासी एमएलए होंगे और जो आदिवासी चाहेगा वो गुजरात की सरकार करेगी। आदिवासी की धन, आदिवासी जल, जंगल और जमीन की रक्षा वो सरकार करके दिखाएगी। आपने आज मुझे यहां बुलाया, दूर दूर से आप आए, आपको तंग करने के लिए पार्किंग को 5-6 किलोमीटर दूर रखा गया, मगर आप आए, इतनी प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं। और आपकी जो लड़ाई है, ये जो आंदोलन है, इसमें मैं पूरी तरह शामिल हूंगा, आपके साथ लड़ूंगा और जो आपका हक है उसको हम लेके रहेंगे। जय जोहार, नमस्कार। આભાર રાહુલ ગાંધીજી. હવે હું વિનંતી કરીશ દાહોદના ધારાસભ્ય શ્રી વજુભાઈ પણદા સાહેબને કે આભાર વિધિ કરે. આ દાહોદની ધરતી પર આજે આદિવાસી સત્યાગ્રહની રેલીમાં ઉપસ્થિત આપણા સૌના લોકલાડીલા પૂર્વ અધ્યક્ષ અને સાંસદ અને આપણા માટે જે આપણા વાત કરી કે मैं आपके साथ में रह के लड़ाई लड़ूंगा, એવા જુજારુ નેતા આપણા સૌના લોકલાડીલા રાહુલ ગાંધીજી અહીંયા પધાર્યા તે બદલ એમનો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, શુભકામનાઓ અને આભાર માનું છું. અહીંયા ઉપસ્થિત આપણા પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના અધ્યક્ષ ભાઈ શ્રી જગદીભાઈ ઠાકોરજી, અહીંયા ઉપસ્થિત મધુસૂદન મિસ્ત્રી સાહેબ, દીપક બાબરિયા સાહેબ, સૌ મંચ પર બિરાજમાન વરિષ્ઠ નેતાગણ અને મારા પ્રિય આદિવાસી ભાઈઓ અને બહેનો, દૂર દૂરથી તમે આવા તડકામાં પણ અહીંયા પધાર્યા અને આપણે જે વાત સાંભળી તે બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર માની વિરમું છું. જય જોહાર, જય આદિવાસી. આભાર. શાંતિથી જાય બધા અને પાણીની પણ વ્યવસ્થા કરેલી.
આદિવાસીની પાર્ટી આવી મારી કોંગ્રેસ આદિવાસીની સાચી સાથી આવે પુર કે આવે આંધી સાથે ઉભા રે રાહુલ ગાંધી મારા રાહુલ ગાંધી એને સેવાદળના તમામ